أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور تحقیق وَلَقَدْ اور تحقیق وَصَّيْنَا ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے الذین ان لوگوں کو جنہیں اوتو دی گئی ہے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی کہ ان اتقوا اللہ کے اتقو تم ڈرو اللہ سے اور اگر تکفروا اور اگر تم انکار کرو گے پس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غنیًا حمیدا غنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز اور لائق تعریف حمیدہ لائق تعریف اس کا ترجمہ ہو گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے یہی تاکیدی حکم دیا ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
वकान अल्लाह गनिय्यन हमीदा, और अल्लाह ताला हर एक से बेनियाज और बजात खुद लायक तारीफ है। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, माफी समावाती, जो कुछ आसमानों में है, माफी समावाती, जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ जमीनों में है। और अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह, और काफ़ी है अल्लाह ताला, वकीला, कारसाज। यानी आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काम बनाने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नासु व यअति बिआखरीन। इन यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, ले जाएं तुम्हें, अय्युहन्नास, ए लोगों, और वयअति, और लेकर आ जाएं, बिआखरीन, दूसरों को। और अल्लाह ताला है अला ज़ालिका क़दीर, इस बात पे कादिर। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, अल्लाह ताला इस बात पे कादिर भी है। मन काना युरीदु, जो शख्स युरीदु, चाहता हो, सवाब, दुनिया का, तो अल्लाह के नज़दीक, फ़इंद अल्लाही, तो अल्लाह के पास, सवाब दुनिया, सवाब दुनिया का, वल आखिरा, और आखिरत का मौजूद है। वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, और अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। तो ये जो आयत है, यशा युज़हिबकुम, इसका तर्जुमा दोबारा देखें। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व यअति बिआखरीन वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, अगर वो चाहे तो ए लोगों, तुम सबको दुनिया से ले जाए और दूसरों को तुम्हारी जगह यहाँ ले आए। अल्लाह इस बात की पूरी कुदरत रखता है। मन काना युरीदु सवाब दुनिया, जो शख्स सिर्फ दुनिया का सवाब चाहता है तो उसे याद रखना चाहिए, फ़इंद अल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, और अल्लाह ताला ऐसा है कि हर बात को सुनता है और हर बात को जानता है। हर बात को सुनता है और हर बात को जानता है। ये तर्जुमा सबको समझ में आ गया?
جی کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں کچھ تفسیر کچھ آیات کی رہ گئی تھی، تو وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا یہاں سے بات آگے ہم نے لے کے چلنی تھی کہ اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یعنی کسی قسم کی زیادتی نہ کرو، یعنی دوسرے فریق پہ ناجائز دباؤ نہ ڈالو، یعنی جس قدر ممکن عورت کو سہولت تو پہنچاؤ، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے امور سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہاری صلح اور مخاصمت جو ہے، نیکی اور پرہیزگاری، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ تمہاری کوائف سے واقف ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر تم اپنی طرف سے دوسرے فریق کو رعایت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کرے گا، اور پھر آخرت میں اس کا اجر تو بہت وسیع ہے۔ لہذا دوسرے کے ساتھ حد الامکان حسن سلوک کی کوشش کیا کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ خود نقصان اٹھا کے بھی اگر دوسرے کے ساتھ نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر اجر پاؤ گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کئی بیویاں ہو تو ایک طرف زیادہ میلان ہونا یہ فطری امر ہے، عام طور پہ انسان خواہش کے باوجود اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں بیان فرما دیا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تمہیں ہرگز طاقت نہیں ہے، استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے کہ عورتوں کے درمیان پوری طریقے سے انصاف کر سکو، اگرچہ کتنی ہی حرص کرو، یعنی تم جتنا بھی چاہو، تمہارا دل جی چاہے کہ عورتوں کے درمیان انصاف کرو، عادل کرو، لیکن پھر بھی تم عادل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، بڑا مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ظاہری طور پہ اپنی بیویوں کی رہائش، کھانے، لباس، لین دین میں برابری کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے مولا کریم، میں یہ کام اپنی طاقت کے مطابق انجام دے رہا ہوں، اور جس معاملے میں میں استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جو چیز میرے بس میں نہیں ہے، اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے طبعی میلان کسی ایک طرف ہو جس سے میں تقسیم نہ کر سکوں، اسی لیے فرمایا کہ تم خواہش کے باوجود عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکو گے۔ یعنی ہو سکتا ہے یہ ظاہری طور پہ کھانے پینے میں، رہائش میں، لباس میں برابری کر رہے ہو، لیکن پیار اور محبت میں تو برابری نہیں کر سکتے۔ کسی ایک کی طرف زیادہ میلان ہوگا، دوسری طرف میلان نہیں ہوگا، یہ تو برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ پیار اور محبت کا ہونا یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو قدرتی اور فطری چیز ہے۔ کسی سے زیادہ محبت ہوگی، کسی سے کم ہوگی، تو محبت میں تو انسان عدل نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، کہ کسی ایک طرف مکمل طور پہ نہ جھک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو فتذروها کالمعلقہ کہ دوسری بیوی کو درمیان میں لٹکتا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم رکھو، اس کا حق بھی ادا کرو۔ ایک طرف بہت زیادہ رغبت ہو اور دوسری طرف بالکل نہ ہو، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اگر تھوڑا بہت فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور اس نے ایک کے ساتھ التفات کیا، ایک کی طرف توجہ کی اور دوسری کو نظر انداز کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، وہ گھسٹتا ہوا اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، کیونکہ اس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں، لیکن اولاد سے محروم رہے، تاہم آپ بیویوں کے درمیان سلوک میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ جب کوئی چیز باہر سے آتی تو آپ ترازو سے تول کے برابر برابر تقسیم کرتے تھے کہ کسی کے حصے میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔
यहाँ तक कि एक शख्स आपके लिए 2 तरबूज लेके आया, आपको जानता था कि आपकी 2 बीवियां हैं, देहाती था, कहने लगा कि हज़रत ये मैं 2 लेके आया हूँ, चूंकि मुझे पता है कि आपकी 2 बीवियां हैं, एक और दोनों का वजन भी बिल्कुल बराबर है। वाक़अतन जब देखा गया वजन भी बिल्कुल बराबर था, तो फिर भी हज़रत ने फरमाया दोनों को आधा कराया दरमियान में, और एक के हिस्से, एक तो उसका एक हिस्सा है तरबूज का, वो दूसरे के साथ मिला दिया, मिक्स कर दिया दोनों को, और फिर उससे फरमाया कि हो सकता है एक मीठा हो और एक कड़वा हो। तो हजरत इतना ख्याल रखते थे, यानी इतना अदल करते थे। बहरहाल बीवियों के दरमियान आदल कायम करना ये बहुत मुश्किल काम है। बीवियों के दरमियान आदल कायम करना ये बहुत मुश्किल काम है, हर एक नहीं कर सकता, हर एक की बस की बात नहीं है। तो फरमाया कि औरतों के दरमियान हत्तुल इम्कान आदल कायम करने की कोशिश करो। वइन तुस्लिहु व तत्तकू, कि अगर तुम सुलह करो, तकवा की राह इख्तियार करो, फ़इन्न अल्लाह कान गफूरर रहीमा, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, छोटी मोटी गलतियों को माफ़ फरमा देगा। तुम बहरहाल इस्लाह की पूरी पूरी कोशिश करो। फिर अगर मुसालहत की तमाम रास्ते ख़त्म हो जाए, इकट्ठे रहने में हुदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी का एहतिमाल हो, तो फिर अलहदगी बेहतर है। वहीं यतफ़र्रक़ा, और अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाएं, यानी तलाक की नौबत आ जाए, तो शरीयत में ये भी जायज़ है, तलाक को अना का मसला न बनाया जाए कि एक दूसरे की जान के दर पे हो जाए, बल्कि इसे भी अल्लाह ताला की मशीयत समझ के कबूल कर लो, अल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी पैदा कर देंगे। फरमाया युग़निल्लाहु कुल्ल मिन साअतिही, अल्लाह ताला फरीक़ैन को अपनी वसात से मुस्तग़नी कर देगा। यानी अगर अलहदगी नियत नेक नियती और इस्लाह के इरादे से हुई है, तो अल्लाह ताला औरत और मर्द हर दो के लिए कोई दूसरा रास्ता पैदा फरमा देगा, जिससे उन दोनों की जिंदगी बेहतर तौर पे बसर हो सके। लिहाजा अलहदगी की सूरत में भी बिल्कुल बददिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह करनी चाहिए और आइंदा जिंदगी के लिए बेहतर लाहा अमल तजवीज़ करना चाहिए। दूसरे बारे में हमने पढ़ा इंसाकुम बिल मारूफ और तसरीहुम बि इहसान, अगर आपस में रहना है तो मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से रहो, वरना एहसान तसरीहुम बि इहसान, एक दूसरे को छोड़ दो एहसान से। शौहर को हुक्म दिया जा रहा है कि बीवी को छोड़ दो, यानी तलाक दे दो अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ तलाक जो है वो तो लड़ाई और झगड़े के बाद होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, हालांकि शरीयत लड़ाई झगड़े का नहीं कहती, बल्कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान निबाह मुमकिन नहीं है, एक दूसरे के हुकूक पामाल हो रही हैं, तो तलाक भी बड़े तरीके से शरीयत पे अमल करते हुए बाकायदा अफराद को बुलाया जाए और बीवी को तलाक भी दी जा सकती है। और यहाँ तक कि शरीयत ने यह हुक्म दिया कि उसका महर जो बाकी रहता है वो अदा करें और साथ साथ में कुछ कपड़े वगैरह भी दे दें। अच्छे तरीके से छोड़ने का हुक्म दिया गया है, तो इसको आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिनका निकाह हो हमेशा रहे, अगर मिजाज वगैरह नहीं मिलता, आपस में अल्लाह ताला के एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं कर पा रहे, अल्लाह ताला के हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर अच्छे तरीके से एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर सबब पैदा फरमा देगा। वहीं यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्ल मिन साअतिही, यानी अपनी वसात के मुताबिक बेहतर सबब पैदा फरमा देगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि बस ख्वामखा छोटी मोटी बातों को बुनियाद बना के तलाक इख्तियार कर ली जाए, जैसा कि आजकल हमारे माशरे में हो रहा है। थोड़ी बात हुई नहीं, खातून गई अदालत, वहां पे जी खुला लेना है, या थोड़ी बात नहीं, गुस्सा हुआ नहीं शौहर, 3 तलाकें दे दी, फिर रोते हुए पीटते हुए हमारे पास दारुल इफ्ता में आते हैं कि मुफ्ती साहब इसका कोई कफारा, कोई हल वगैरह बता दे। तो तलाक का भी शरीयत ने तरीका बताया है, उसका एहतमाम करना चाहिए, उसके मुताबिक देना चाहिए तलाक। ये पूरे कुरान मजीद में निकाह के हवाले से कोई सूरत नहीं है, लेकिन तलाक से मुतालिक स्पेशल एक सूरत नाजिल फरमाई, सूरह तलाक 28वें पारे में है। तलाक के
अहकामात बयान किए। मुफस्सिरीन ने वजह यही बयान फरमाई कि निकाह के लिए तो बड़ा एहतमाम होता है, मशवरा किया जाता है कि जी फलानी लड़की है, अपने बेटे के लिए मैं करना चाहता हूँ, वो कैसे लोग है, ख़ानदान अच्छा है नहीं है, मुफ्ती से भी रब्ता किया जाता है, आलिम से भी रब्ता किया जाता है, दोस्तों से भी रब्ता किया जाता है, हर एक से मशवरा लिया जाता है, फिर बाकायदा उसके लिए प्रोग्राम वगैरह मुनाकिद किया जाता है, निकाह होता है। लेकिन तलाक ये भी शरीयत का हुक्म है, इसके लिए कोई एहतमाम नहीं होता, बस गुस्से में आगे 3 तलाकें दे दी, फायर करने के बाद फिर मुफ्ती से मशवरा करना होता है कि जी ये तलाक दे दी। मशवरा तो पहले करने का होता है कि ये मामलात है, अब मैं क्या इख्तियार करूं, क्या सूरत इख्तियार की जाए, इन मामलात को कैसे खत्म किया जाए। फिर बाद में मियाँ बीवी दोनों रोते हुए आते हैं कि वो गुस्से में थे, लड़ाई झगड़े की सूरत थी, तो अरे अल्लाह के बंदो, तलाक जो है वो कौन प्यार और मोहब्बत में देता है, गुस्से की हालत में ही ये तलाक का वाकया होता है। इसलिए हर एक चीज जो है, हर मामले से पहले किसी अल्लाह वाले से, किसी मुस्तनद आलिम और मुफ्ती से मशवरा करना चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जो हमने आयत तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा इख्तियार करने की ताकीद फरमाई है। और कुरान मजीद का ये उसलूब आपने देखा होगा कि जहाँ भी अहकाम, उसूल और कवानीन का जिक्र आता है, उसके बाद तक़वा जैसी बुनियादी चीज़ की ताकीद की जाती है और तरगीब दी जाती है, ताकि इंसान के लिए अहकाम शरीयत पे अमल करना आसान हो जाए। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला इस मौके पे दोहराते हैं, वो अल्लाह ताला की सिफ़ात है, और इनके बयान से मकसूद ये होता है कि अगर तामील हुक्म में कोई कोताही रह गई तो अल्लाह ताला इन सिफ़ात का मालिक है, वो तुम्हें सज़ा देने पे भी कादिर है, लिहाजा उसके अहकाम की तामील में किसी किस्म की हुज्जतबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इंसान में एहसास जिम्मेदारी पैदा करने का ये भी एक ज़रिया है, यही वो चीज़ है जिसे तक़वा के नाम से मौसूम किया गया है। तो अगर इंसान में तक़वा पैदा हो जाए तो उसके लिए हुक्म की तामील निहायत आसान हो जाती है। लिहाजा तमाम चीज़ों का असल उसूल जो है तक़वा है। सूरह निसा की शिरों में औरतों और दीगर कमज़ोर तबक़ात, मसलन यतीमों वगैरह के हुकूक का जिक्र है, तो वहाँ भी मज़मून की इब्तिदा इसी तक़वा से हुई, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, लोगों अपने रब से डरो। आज की आयत में भी तख्लीक़ कायनात का बार बार जिक्र किया और साथ में तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है। यानी हकीकत में तमाम चीज़ों का मालिक और तमाम चीज़ों में मुतसर्रिफ अल्लाह ताला है। अर्ज़ व समा की हर चीज़ अल्लाह की पैदा की हुई है, इसलिए याद कर रखो, वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब, हमने ताकीदी तौर पे हुक्म दिया था उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई, यानी अहले किताब को भी, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, उनको भी यही हुक्म था, व इय्याकुम, और तुम्हें भी यही हुक्म दिया जा रहा है, अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम में खौफ खुदा पैदा हो जाए तो उस मालिकुल मुल्क के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, तुम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकोगे, किसी का हक जो है वो तलफ नहीं करोगे, किसी पे ज्यादती नहीं करोगे। तक़वा से मुराद खौफ खुदा है। जब ये इंसान के अंदर पैदा होती है तो इंसान कुफर से, शिर्क से, इल्हाद से और तमाम बातिल अकाइद से, गुनाहों से बचता है। तो कामिल तक़वे का हामिल इंसान जो होता है, कबीरा गुनाहों के अलावा सगीरा और मुश्तबह चीज़ों से भी बचता रहता है। हराम से बचना तो हर सूरत में लाजिम है, वरना दाखिल तक़वा जो है हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हर मामले में शरई हुदूद कायम किए हैं।
تو جو شخص ان حدود کی حفاظت کرے گا وہی منصب تقوی پہ فائز ہوگا۔ آخرت میں اچھے ثمرات کا انحصار تقوی پر ہے، تو اگر انسان متقی ہے تو اس کا اخلاق، نیک اعمال اور اعلیٰ اطوار اسے دنیا میں بھی سرخلو کریں گے اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہاں پہ یہ بھی بات بتا دی کہ اہل کتاب کو بھی ویسے ہی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جس طرح امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی بجائے اپنے عقائد ہی بگاڑ لیے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کامیابی کا مدار تقوی پر ہے، لیکن عیسائی کہتے ہیں کامیابی کا مدار محبت پہ ہے۔ وہ اس خیال میں مبتلا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے اس لیے وہ سب کچھ خود ہی معاف کر دے گا، لہذا ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ برخلاف اس کی انجیل کی اصلی تعلیم قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہے۔ انجیل میں آج بھی ایسی آیات موجود ہے جن میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے ابن آدم تم اس ذات سے ڈرو جو روح جسم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتی ہے، لیکن عیسائیوں نے تقوی کا عقیدہ پس پش ڈال دیا، اس وجہ سے انہوں نے عمل اور تقوی کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے اہل کتاب اور اہل ایمان سب کو حکم دیا کہ تقوی کو اختیار کرو، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، کفر کے راستے پہ چلو گے، تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق، مالک، متصرف وہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ہر حالت میں وہ تعریفوں والا ہے، تعریف کے لائق ہے۔ پھر تاکیداً فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ تو ان آیات میں آپ نے دیکھا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 3 دفعہ دہرایا گیا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار نازل ہونے والی اس کلمے کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت کے ساتھ ہے، یعنی گزشتہ آیت کے آخری الفاظ جہاں پہ تھے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، تو اسی صفت وسعت کے ساتھ ہی آج کی پہلی آیت کی ابتدا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے ہوئی۔ فرمایا کہ چونکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہذا کائنات جیسی وسیع تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت جو ہے وہی آپ کو نظر آئے گی۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں مذکورہ جملے کا تعلق تکفرو کے ساتھ، اس سے فوراً پہلے یہی الفاظ آیا ہے، اور اس سے مقصود یہ یاد دلانا ہے کہ دیکھو دنیا میں جہاں کی ہر چیز پہ تصرف صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو ان حالات میں تم اس کا کفر یعنی انکار کر کے کہاں جا سکتے ہو؟ بادشاہی تو اسی کی ہے، اس کی سلطنت ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ لہذا کفر کر کے تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مستغنی ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ سب تعریفوں کا مالک ہے۔ اس جملے کی تیسری آیت کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت کارسازی سے ہے، یعنی وکیل سے ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، چنانچہ اس آیت میں جملہ دہرانے کے بعد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، مقصد یہ کہ پوری کائنات یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، غرض ہے کہ ہر چیز کا مالک وہی مالک الملک ہے، اور اس میں بسنے والے ہر انسان، جن، فرشتے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب کا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام دنیا میں بھی ٹھیک کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے کام ٹھیک کر دے گا، بے شمار انعامات سے نوازے گا، کیونکہ کام بنانے والا وہی ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا،
लिहाजा उसे कारसाज बना लो, उसे समझो, उसी पे भरोसा रखो। काम बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला ने अपनी इन सिफात का जिक्र करके माबूदान बातिला की नफी कर दी। यानी जब मालिक, मुख्तार, कादिर मुतलक, कारसाज और आलिम कुल अल्लाह ताला की जात है, तो फिर उसके अलावा माबूद भी कोई नहीं हो सकता। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद गैरुल्लाह की पूजा करने वाले लोग मौजूद है। कोई जमीन की इबादत कर रहा है, कोई आसमान की, कोई चांद सूरज का परस्तार है, कोई हकीर से हकीर चीज का पुजारी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात कही है। फरमाते हैं कि इंसानी फिक्र और ज़हन भी अजीब चीज है। जब वो मानने पे आता है तो गोबर जैसी नापाक चीज को पूजने लगता है, और जब इनकार करने पे आए तो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम पे पत्थर बरसाने लगे। हिंदू इसी ज़हनियत के मालिक है। वो गाय के गोबर को पाक समझते हैं और नापाक चीज को इसके जरिए पाक करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इलाह एक ही जात है, बाकी सारी मखलूक उसके सामने आजिज है, बेबस है। सूरह फातिर में साफ मौजूद है, या अय्युहन्नास, ए लोग, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनिय्यु अल हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज है, बेपरवाह है, हमीद है, जो चाहे करता है, हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, यानी जमीन और आसमान का हर फर्द उसी से सवाल करता है। कायनात की हर चीज जुबान हाल या जुबान काल से अल्लाह ताला से ही मांगने वाली है। दरख्तों के पत्ते उसी के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। तमाम नबातात की जड़ें अपनी जरूरियात की चीजें उसी से तलब करती है। तो अल्लाह ताला ने अपनी मज़कूरा सिफात के इजहार के बाद फरमाया, जो ज़ात खालिक, मालिक और मुख्तार कुल है, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए, उठाए, इस दुनिया से नेस्त नाबूद कर दे, वयअती बिआखरीन, और दीगर अफराद को ले आए। यानी सब लोग अल्लाह ताला का इनकार करने लगे तो उसको इख्तियार हासिल है इस मखलूक को सफ़े हस्ती से मिटा के कोई दूसरी मखलूक ले आए, या किसी खास इलाके के मुनकिरीन की जगह मुत्तबीईन को खड़ा कर दे। चुनांचे जब अरबों ने नबी आखिर उस ज़मान का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह आजमी ईमान वालों को ला खड़ा किया। जब मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने अंसारी मदीना को आप पे ईमान लाने वाला बना दिया। जब अब्बासियों ने इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह मुगल्लों को खड़ा कर दिया कि दीन के पासबान तुम बन जाओ। तो अगर पाकिस्तानी दीन पे अमल पैरा नहीं होंगे तो अल्लाह ताला उनकी जगह किसी दूसरे मखलूक को ले आएगा, और मौका मिलने के बावजूद वसाइल के होते हुए दीन से एराज की वजह से ये लोग लानत के मुस्तहिक बन जाएंगे। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, और अल्लाह ताला इस बात पे कादिर भी है, कादिर मुतलक है, जो चाहे करे, सब उसकी मशीयत के सामने आजिज है। तो अगर अहले वतन, मुल्क और मिल्लत की कोई खिदमत आप कर सकें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने तौफीक बख्शी। अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो वो बेनियाज है, उसे किसी की कुछ परवाह नहीं। वो जब चाहे एक जमात की जगह दूसरी जमात को ले आए। फिर आगे अल्लाह ताला ने मखसूस अंदाज में दुनिया और आखिरत का मुवाजना किया है और इशारतन ये बात समझाई है कि इस दुनिया की जिंदगी महदूद है, असल दायमी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। लिहाजा इस दुनिया की बजाय आखिरत की बेहतरी के लिए कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। इरशाद फरमाया, मन कान युरीदु सवाब दुनिया, कि जो लोग दुनिया की जिंदगी पसंद करते हैं
اور इस आरिज़ी ज़िंदगी की नेमतों तक ही महदूद रहना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो दुनिया की हर नेमत अता करने पे कादिर है, लेकिन याद रखो फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह की नेमतें मौजूद है। हर तालिब को उसकी मतलूबा चीज़ ही मिलती है। सूरह बकरा में हमने पढ़ा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ हमारे परवरदिगार हमें इस दुनिया ही में अता कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कुछ नहीं होगा जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं। दूसरे गुरों के बारे में फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, कि हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी बेहतरीन अता फरमा दी और आखिरत में भी बेहतरीन अता फरमा दी और दोज़ख के अज़ाब से बचाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों का हिस्सा उनकी तलब के मुताबिक ही होगा, यानी दुनिया में भी हिस्सा होगा और आखिरत में भी, यानी जो दुनिया और आखिरत को मांगते हैं, दोनों को मांगते हैं, तो अल्लाह ताला दोनों जगह अता फरमाएंगे। सूरह ताहर में फरमाया कि इंसान बहुत जल्दबाज है, वो इसी दुनिया में सब कुछ हासिल करना चाहता है। इन्ना हाउला युहिब्बून अल-आजिला व यज़रून वराअहुम यौमन सकीला, यानी क़यामत के भारी दिन को ही पीछे छोड़ देते हैं, उसकी कुछ फिक्र नहीं करते। जो लोग इस दुनिया के माल, असबाब, ऐश और राहत के तलबगार होते हैं, वो अगली दुनिया में कुछ हिस्सा नहीं पाते, लेकिन जो लोग दुनिया और आखिरत दोनों जगह बेहतरी चाहते हैं, उन्हें दोनों जगहों के इनामात से सरफराज किया जाता है। ऐसे लोगों को यकीनन उनकी सही का बदला मिलेगा। तो दुनिया और आखिरत के लिए दो मुख्तलिफ कानून है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात समझा दी कि अल्लाह के पास दुनिया की जिंदगी का बदला भी है और आखिरत की जिंदगी का भी। लिहाजा सिर्फ दुनिया के माल और असबाब में उलझ के न रह जाओ, बल्कि आखिरत की दायमी जिंदगी का भी सामान पैदा करो। जाहिर है कि ईमान, तकवा, नेकी का असल समरा और महल आखिरत है, तो दायमी चीज को छोड़ के और इसी चीज के पीछे ना पड़ो। यह अक्लमंदी की बात नहीं है, ये तरगीब भी हो गई और तरहीब भी। वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है, हमारी हरकत, हमारी सकानात को देख रहा है। लिहाजा तकवा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कुफर, शिर्क, मासी से बचना चाहिए और उसी से उम्मीद वाबस्ता रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी माना में इखलास और तकवा नसीब फरमाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।